Hello students, welcome to online classes NCERT. We are going through class 9 history chapter number 1 the French Revolution. We have already covered two topics of this chapter and today we will do the third topic. Till now we studied a timeline in which we saw that on 5th May 1789 Louis XVI called meeting of Estates Generals where the third estate, which is one of the division of the society which was burdened with extra taxes, was demanding one member, one vote. This was rejected by Louis XVI, due to which Third Estate walked out of the hall where the meeting was being conducted. In revolt, Third Estate declared National Assembly and started drafting of Constitution for France. This happened on 20th May. After this event, the situations were worsening and riots spread throughout France, and on 14th July 1789, Louis XVI ordered troops to go to Paris for shooting the citizens, in response of which people become agitated, attacked Bastille and killed the general of the Bastille. Louis XVI was under pressure and on 4th August he gave recognition to National Assembly and passed decree to reduce powers and privileges. In 1791, after completion of the draft, the powers of the monarch were reduced and divided between legislature, executive and judiciary. In this part, we are going to cover third topic, that is France abolishes monarchy and becomes a republic. We will see how the monarch was executed and France became a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this war of the people against king and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger d'Isle. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. हमने पिछले पार्ट में देखा पूरे फ्रांस में रॉयट्स होने के कारण लुईस 16 को कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ा था और अपनी पावर्स कम करनी पड़ी थी, लेकिन लुईस 16 दूसरे कंट्रीज के राजाओं के साथ मिलके सीक्रेटली आर्मी को फ्रांस में बुला रहा था और इसके लिए लुईस 16 ने प्रूशिया के राजा के साथ मिलकर संधि कर ली थी और आस पड़ोस के कुछ देशों से हाथ मिला लिया और उनकी आर्मी को वो फ्रांस में लेके आना चाहते थे, क्योंकि आस पड़ोस के देशों के राजा भी चाहते थे कि फ्रांस में होने वाली जो विद्रोह है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी उनकी कंट्रीज पे पड़ रहा था और लोग अवेयर होकर वहां पे भी रॉयट्स कर सकते थे, जिसके कारण रेवोल्यूशन हो सकता था और उन राजाओं को भी खतरा हो सकता था। इसी कारण वो फ्रांस के राजा लुईस 16 की मदद करना चाहते थे, लेकिन यह सब होने से पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 अप्रैल में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, जो कि फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज थी, उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। इस लड़ाई में फ्रांस के हजारों वॉलंटियर्स ने भाग लिया। लोग अपनी मर्जी से आकर ये लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस में होने वाले रेवोल्यूशन को कोई भी रोके और फ्रांस में जो चेंज आने वाला है उसमें किसी भी तरह की अड़चन आए। जो लोग आर्मी का हिस्सा बन रहे थे उन्हें लगता था कि ये लड़ाई लोगों की राजा के खिलाफ है और उनकी जो तानाशाह सत्ता है उसके खिलाफ है, जो कि पूरे यूरोप में फैली हुई है। उसी वक्त कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग भी बहुत फेमस हुए जो लोग गाते थे और गाकर एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। उसी में से एक है मार्सेलियस। इस गाने का नाम मार्सेलियस इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहले ये मार्सेलियस के वॉलंटियर्स ने गाना शुरू किया था। ये फ्रांस में एक जगह है जहां पर लोगों ने गाना गाकर पेरिस की तरफ बढ़ना शुरू किया था।
इसीलिए इस गाने का नाम मार्सिलेज पड़ गया। मार्सिलेज अब भी फ्रांस का नेशनल एंथम बना हुआ है। The revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further. As the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society, political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. अब जब सिटीजन्स लड़ाई लड़ने के लिए चले गए, उन्हें इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे, मतलब पैसे की तंगी हो रही थी। इस पैसे की तंगी के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए विमेन थी, उन्होंने कमाई करने का जिम्मा उठाया और परिवार का ध्यान रखने लगी। ज्यादातर पॉपुलेशन को लगता था कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ अमीर लोगों को दिए गए थे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वोटिंग का राइट सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया था, जो कि 25 इयर्स की एज से ज्यादा वाले मैन थे और जो 3 डेज से ज्यादा की वेजेस एज टैक्सेस पे कर रहे थे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए थे, वोट करने का राइट था। इसके कारण भी लोग काफी नाराज थे और चाहते थे कि वोटिंग का राइट सबको मिले और उनकी कमाई के बेसिस पर ना हो। इसलिए वो चाहते थे कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये उनके हकों की बात थी, उनके राइट्स की बात थी। इसी के चलते बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए। उन क्लब्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको डिस्कस किया जाता था और ऐसे प्लान्स बनाते थे लोग जो कि उन्हें लगता था उनके लिए सही हैं। उन्हीं क्लब्स में से सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन्स। जैकोबिन्स क्लब है, उसका नाम एक संत थे उनके नाम पर था, जो कि पेरिस में रहते थे। उनका नाम था सेंट जैकोब। जो विमेन थी, जो पीछे घरों में रहकर कमाई कर रही थी और परिवार को पाल रही थी, उन्होंने भी क्लब्स बनाने शुरू किए। The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wear knee breeches. Jacobin Club के जो members थे, वो पुअर सेक्शन के लोग थे, जो कि छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि दुकान चलाना, किसी तरह का आर्टिस्ट हो गया, चाहे वो शूज बनाने वाले हैं, पेस्ट्री बनाने वाले हैं, घड़ियां बनाते हों या प्रिंटिंग का काम करते हों या घरों में काम करने वाले डेली वेज वर्कर्स हों। इन सब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो लंबी स्ट्राइप्स वाले ट्राउजर्स या पैंट्स पहनते थे, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्राउजर्स पे लंबी लंबी स्ट्राइप्स लगी हुई हैं और विमेन की जो स्कर्ट्स हैं उस पे भी लंबी स्ट्राइप्स हैं। तो जैकोबिन क्लब है, वो खुद को औरों से डिफरेंट दिखाना चाहते थे, अपनी पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पहनावे को भी चेंज कर दिया था और डॉक वर्कर्स के कपड़ों के जैसे लॉन्ग स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहनने लग गए थे। मोर ओवर जैकोबिन क्लब है, वो खुद को जो अमीर लोग थे, स्पेशली जो नोबल्स थे, उनसे खुद को डिफरेंट दिखाना चाहते थे, अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया। जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस ऐसे ट्राउजर्स होते थे जो नोबल्स पहनते थे और जो सिर्फ घुटनों तक ही होते थे। इन ट्राउजर्स को या शॉर्ट पैंट्स को नी ब्रीचेस बोलते थे, जो कि जैकोबिन क्लब के लोग नहीं पहनना चाहते थे। वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition to red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food.
On the morning of 10th August, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. जो जैकोबिन्स थे उन्होंने अपनी स्ट्राइप्स वाली ड्रेस पहनकर नी ब्रीचेस पहनने वालों का विरोध किया था। ये जो जैकोबिन्स थे इन्हें सैंस कुलोट्स भी बोला जाने लगा, जिसका मतलब था वो जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। सैन कुलोट्स थे, उनमें जो मेन थे वो एक लाल टोपी भी पहनते थे, लेकिन विमेन को ये करना अलाउड नहीं था। इस पिक में देख सकते हैं एक हाथ में एक स्टिक के ऊपर कैप रखा हुआ है, यही कैप था जो जैकोबिन्स पहनते थे। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन है उन्होंने रिवोल्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जो फूड की सप्लाई थी वो कम हो गई थी और फूड के प्राइसेस फिर से बढ़ रहे थे। 10 अगस्त की सुबह को उन्होंने ट्यूलरीज के पैलेस में हमला किया, वहां के गार्ड्स को मार दिया और जो किंग था उसे काफी घंटों के लिए बंदी बना लिया। बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली को भी इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, उनको कैद कर लिया, जिसके बाद से इलेक्शन हुए और सभी मैन जो 21 ईयर्स से ज्यादा के थे उनको वोटिंग का राइट दे दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ। मतलब यहाँ पे ये नहीं देखा गया कि वो 21 प्लस वाले जो मैन हैं वो अमीर हैं या गरीब हैं, सबको वोटिंग का राइट दिया गया, लेकिन अभी भी विमेन को वोटिंग का राइट नहीं मिला था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. There is no hierarchy monarchy. राजा को imprisonment देने के बाद इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्ट हुई थी उसे कन्वेंशन बोला गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। दिस वॉज द न्यू बिगनिंग फॉर फ्रांस। रिपब्लिक वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं और गवर्नमेंट के हेड को भी चुनते हैं। अब फ्रांस में किसी भी तरह की हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी, मतलब वंशावली, मतलब एक फैमिली पूरे कंट्री पे रूल नहीं करेगी। लुई 16 was sentenced to death by court on the charge of treason. On 21 January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette was met with the same fate shortly after. लुई 16 को देशद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को सारे लोगों के सामने पब्लिकली पैलेस डी ला कॉन्कॉर्ड में फांसी दे दी गई। क्वीन मैरी एंटोनाइट का भी यही हाल हुआ। द रीन ऑफ टेरर, डर का दौर। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred as the reign of terror. Robespierre followed policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by the Revolutionary Tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. Guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin, who invented it. लुई 16 को फांसी देने के बाद 1793 से 1794 का जो दौर है, जो टाइम पीरियड है, उसे रीन ऑफ टेरर मतलब डर का दौर बुलाया गया। रॉब्सपेरे जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसने ऐसी पॉलिसी चलाई जिसके द्वारा सबको कंट्रोल कर सके और पनिशमेंट दे सके। जो कोई भी उसकी बात नहीं मानता था उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और उनपे केस चलाए जाते थे, चाहे वो पुराने नोबल्स या क्लर्जी हो या और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हो या उसकी ही पार्टीज के मेंबर हों जो उसके साथ एक राय नहीं रख रहे थे, उसके साथ डिसएग्री कर रहे थे। अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी मानता था उसको गुलिटन कर दिया जाता था। गुलिटन एक डिवाइस है। गुलिटन ऐसी मशीन होती थी जिसकी दोनों तरफ पोल्स होते थे और बीच में एक ब्लेड लगा होता था और वो ब्लेड नीचे किसी भी इंसान की गर्दन काट सकता था। गुलिटन का नाम डॉक्टर गुलिटन के नाम पे पड़ा था
जिन्होंने ये मशीन बनाई थी। रॉब्सपियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वर रेशन्ड। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. Use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional monsieur and madame, all French men, women were henceforth citoyens and citoyennes, which means citizen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. रॉब्सपेयर हैं वो इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने डेली वेजेस पे एक सीलिंग लगा दी थी। सीलिंग का मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दिया था जिससे ज्यादा किसी को वेजेस नहीं मिल सकती थी, और उसी तरह प्राइसेस पे भी सीलिंग लगाई थी, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर किसी भी चीज का प्राइस नहीं जा सकता था। मीट और ब्रेड है वो राशन की तरह मिलने लगे थे। जिस तरह से हमें राशन के डिपो पे व्हीट एंड पल्सेस मिलते हैं, उसी तरह उन्हें मीट और ब्रेड मिलने लगे थे। जो पीजेंट्स थे उन्हें फोर्सफुली कहा गया कि वो अपने ग्रेन्स हैं सिटीज में ले जाके मार्केट में बेचें और उसी प्राइस पे बेचें जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। व्हाइट फ्लावर है उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ये माना जाता था सबको खाना भी एक ही जैसा खाना चाहिए। सभी सिटीजन हैं उन्हें पेन डिगैलिटी खाना पड़ रहा था, जिसका मतलब था इक्वालिटी ब्रेड। ये वो ब्रेड थी जो होल व्हीट से बनी होती थी और जिसमें व्हाइट फ्लावर बिल्कुल नहीं होता था, और ये इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए सबको सेम तरह का खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा था। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सभी तरह की स्पीच है और एड्रेस है उसमें भी इक्वालिटी आएगी। इसका मतलब है कि किसको किस तरह से बुलाना है ये उसके इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत डिपेंड करता है। हालांकि ऐसा ऑफिशियली कुछ नहीं है कि अमीर को कैसे बुलाना है और गरीब को कैसे बुलाना है। सोसाइटी में ये एक नॉर्म बना हुआ है कि अमीर को रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है और गरीब को जिस मर्जी तरह से बुलाया जा सकता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी तरह की स्पीच और एड्रेस में भी इक्वालिटी आएगी। इसका मतलब है कि मॉन्ज्यूर सर को बोला जाता था और मैडम को बोला जाता था, लेकिन अब बोला गया कि सभी मेन एंड वीमेन हैं उनको सिटियन और सिटियन बुलाया जाएगा, जिसका मतलब है सिटीजन। चर्चिस को बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग्स थी वहां पे बैरक्स और ऑफिसेज बना दिए, मतलब प्रिजन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज बना दिए गए। रॉब्सपेयर pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by the court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. अब रॉब्सपेयर ने इतनी ज्यादा सख्ती कर दी थी कि उसके अपने ही सपोर्टर बोल रहे थे कि थोड़ा सा मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए, मतलब जो इतना हार्शनेस शो की जा रही है उसको कम करना चाहिए। इसीलिए जुलाई 1794 को उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया और फाइनली उसे गुलेटिन के लिए भेज दिया गया, मतलब उसका भी गला काट दिया गया। The fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory, an executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. Political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of the Europe during the following century. अब जैकोबिन के डाउनफॉल के बाद जो मिडिल क्लास के वेल्दी लोग थे, मतलब अपर मिडिल क्लास थी, उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। इट मीन्स गवर्नमेंट को वो रन करने लग गए। उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जिसमें जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग का राइट भी नहीं था। साथ में ही उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जो मिलकर एक डायरेक्टरी को चूज करते थे, जो कि 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव था। मतलब कि 2 लेजिस्लेटिव्स 5 मेंबर्स को चूज करते थे
जो कि एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता था, जिसे कि डायरेक्टरी बोला गया। अब जो डायरेक्टरी थी उसका एग्जीक्यूटिव्स के साथ झगड़ा चलता रहता था बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। जब पावर आ जाती है तो हर कोई अपने तरीके से काम करना चाहता था, इसीलिए डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव के बीच में क्लैशेस होते थे। इवन दो डायरेक्टरी बनाने का कारण ये था कि किसी एक इंसान के हाथ में पावर ना रहे, बट फिर भी झगड़े अभी भी हो रहे थे। वो चाहता था डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया जाए। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ही फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे का राइज हुआ। ऑल्दो गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन फिर भी फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज हैं वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, जिसके कारण पूरे फ्रांस में और यूरोप में पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो चलती रही। हमने पिछले पार्ट में भी देखा कि किस तरह से विमेन भी इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑल्दो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, इनडायरेक्टली वो काफी कंट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि वो अर्निंग्स भी कर रही थी और अपनी फैमिली का ध्यान भी रख रही थी। इसके अलावा विमेन ने भी कुछ ग्रुप्स बनाए थे जिनके थ्रू वो इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। नेक्स्ट पार्ट में हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट इज, डिड द वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their life. Most women of the Third Estate had to work for living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, and were employed as domestic servants in houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the Third Estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. Their wages were lower than those of men. शुरुआत से ही women ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो भी चाहती थी कि फ्रेंच सोसाइटी में चेंजेस हों और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उनकी लाइफ सुधर सके। विमेन खुद की लाइफ सुधारना चाहती थी, जिसके कारण वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहती थी। थर्ड एस्टेट की सभी विमेन हैं वो घर के खर्चे के लिए काम करती थी। सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस के तौर पे काम करती थी, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बेचती थी और अमीर लोगों के घरों में एज सर्वेंट्स काम करती थी। ज़्यादातर विमेन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी और ना ही किसी तरह की जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। ओनली रिच पीपल हैं उनकी डॉटर्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी और वो एजुकेशन कॉन्वेंट में दी जाती थी। कॉन्वेंट का मतलब है ऐसे स्कूल्स जो एक कम्युनिटी से रिलेटेड हों और ज़्यादातर उससे रिलेटेड ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हों। तो नोबल्स और रिच अपनी डॉटर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन कॉन्वेंट में, और एजुकेशन देने के बाद वो उसकी मैरिज कर देते थे। ऑन द अदर हैंड जो थर्ड एस्टेट की विमेन हैं उनको अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रखना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, पानी भर के लाना, ब्रेड के लिए लाइनों में खड़े होना और बच्चों की देखभाल करना, यह सब करना पड़ रहा था। इसके अलावा उनकी वेजेस भी मेन से कम थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demand was that women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interests be represented in the new government. अब जो विमेन हैं उन्हें पता था कि मैन को कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं दिए जा रहे। वो भी मैन की तरह ही बाहर अर्निंग के लिए काम करती थी। इसके अलावा घर का सारा काम भी वही कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राइट्स नहीं मिल रहे थे। इसीलिए विमेन ने भी अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो बनाने शुरू किए और न्यूज़पेपर्स भी
प्रिंट करने लग गई। ऐसे 60 विमेन्स क्लब फ्रांस के शहरों में बन गए थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन सबसे फेमस ग्रुप था। उनकी मेन डिमांड थी कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं जिस तरह से मैन को दिए जा रहे हैं। उन्हें लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में उन्हें पैसिव सिटीजन का स्टेटस जो प्रोवाइड किया है वो गलत है और वो इससे काफी नाराज थी। वो चाहती थी कि उन्हें भी वोट करने का राइट मिले, असेंबली में मेंबर बनने का राइट मिले और पॉलिटिकल ऑफिस मतलब पोजीशंस पर बैठने का राइट मिले। उन्हें लगता था जो गवर्नमेंट उनके ये इंटरेस्ट पूरे करेगी उसी गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी वोट के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें फ्रेंचाइज नहीं दिया गया था, मतलब वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। फ्रांस की विमेन ने ड्यूरिंग रेवोल्यूशन जितनी भी एक्टिविटीज़ की थी वो विमेन को हमेशा इंस्पायर करती रही, जिसके कारण थ्रू आउट द वर्ल्ड विमेन अपने राइट्स के लिए खड़ी होती रहीं और फाइनली 1946 में फ्रांस में विमेन को वोटिंग राइट दे दिया गया। इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ ताकि लोगों की कंडीशन सुधर सके। जब मैन को सभी राइट्स मिलने लग गए तो विमेन भी अवेयर हो गई और उन्होंने भी अपने लिए आवाज़ उठाई और कपल ऑफ सेंचुरीज लग गए उन्हें अपनी राइट्स को पाने के लिए और राइट टू वोट मिलने के लिए। होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।